Hello kids, how are you? I hope you all are doing well. So welcome to today's maths class. Today we will do large numbers. We have learned about numbers up to 5 and 6 digit. The smallest 5-digit number is 10,000. The largest 5-digit number is 99,999. The smallest 6-digit number is 1 lakh. The largest 6-digit number is 9,99,999. You have also learned about expanded notation, expressing number in words, identifying ascending and descending order, understanding face value and place value. By place value chart, International System of Numeration, rounding off the nearest 10, 100 and 1000 for 5 and 6 digit number and Roman numbers. In this chapter, we will study all these above aspects of higher digit number, 7 and 8 digit number. But before doing that, let us revise what we have learned about 5 and 6 digit number. आपने पहले 5 और 6 digit number के बारे में पढ़ा है, तो ये एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज 7 digit numbers. The 7 digit numbers begin at 10 lakh. If we place the number in the Indian place value chart, we get, अगर Indian place value chart में इसको अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? We'll write ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. We get digit 1 at 10 lakh position. So we can say the number is 10 lakh in words and figures में हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, then 2, then 2. Thus in the Indian system of numeration, 10 lakh in words, 10 lakh को कैसे लिखेंगे? 10 lakh और फिगर इस तरीके से लिखेंगे. कितने ज़ीरो लगाएंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. फर्स्ट कॉमा जो लगाएंगे, फर्स्ट पीरियड होगा 3 का, then 2, then 2. When we write the same number 10 lakh in international place value chart, we get 1 million. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. सो वी विल रीड इट 1 मिलियन. इंडियन सिस्टम में होगा 10 लाख एंड इंटरनेशनल सिस्टम में होगा 1 मिलियन. द डिजिट 1 कम्स इन द मिनिल प्लेस. मिलियन की प्लेस पे क्या आएगा? 1. सो वी कैन एक्सप्रेस द नंबर इन वर्ड्स एज 1 मिलियन. Using the rule for writing the number in figure and putting commas in the appropriate position, we get, कैसे लगाएंगे कॉमा? फर्स्ट जो होगा पीरियड 3 का, देन अगेन 3 और फिर क्या बच जाएगा? 1. Thus in international system of numeration, 10 lakh in word is written as 1 million. इंटरनेशनल सिस्टम में 10 लाख को हम कैसे रीड करेंगे? 1 मिलियन. और कॉमा कैसे प्लेस करेंगे उसको? 3 के बाद, देन 3, देन 1. The largest 7-digit number is 99,99,999. We can express the number in words in Indian system of numeration, that is 99,99,999. In figure in the Indian system of numeration using commas in appropriate place, कैसे लिखेंगे? इंडियन सिस्टम में कैसे होता है? फर्स्ट जो होता है कॉमा लगता है 3 के बाद, 3 डिजिट के बाद. So we'll put comma here, then 2 digit के बाद, then 99. इस तरीके से हम appropriate place पे commas place करेंगे. In word in international system of numeration, 9,999,199. In figure in the international system numeration using commas in appropriate place, कैसे लिखेंगे? international system में कैसे लगाते हैं? 3, then 3. इस तरीके से पीरियड चलता है. तो फर्स्ट कॉमा कैसे लगेगा? 3 डिजिट के बाद, देन अगेन 3 डिजिट के बाद, देन 1 डिजिट बच जाएगा. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 9,999,999. नेक्स्ट इज 8 डिजिट नंबर्स. The smallest 8-digit number is 1 crore. If we put Indian place value system and we move one place further to the left, the place called crores,
किस तरीके से लिखेंगे इंडियन सिस्टम में? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. The digit 1 comes in the place of crore. Thus, in Indian system of numeration, 1 crore in words is 1 crore. कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? 1 crore. एंड फिगर में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कॉमा जो आएगा 3 डिजिट के बाद, देन 2, देन 2. तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे और ये क्या होगा? 1 crore. In the international place value chart, we can write the number 1 crore. इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million and 10 million. The digit 1 comes in the 10 million place. Therefore, in the international system of numeration, 1 crore is 10 million. और कॉमा कैसे प्लेस करेंगे? 3, then 3. तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन 3 और उसके बाद 2 डिजिट बच जाएगी. द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर इज 9 crore 99 lakh 99,999. The number can be expressed as in word in Indian system 9 crore 99 lakh 99,999. In figure we putting commas in appropriate place in Indian system. किस तरीके से लगाएंगे इंडियन सिस्टम में? फर्स्ट जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद, देन 2, देन 2, देन 2. तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 9 crore 99 lakh 99,999. In word in international system 99,999,999. In figure after putting commas in appropriate place we will write as international system में होगा 3 then 3 then 3. तो first comma we will put after 3 digit, then again 3 digit, then 2 digit बच जाएगी. तो उसको कैसे रीड करेंगे हम? 99,999,999. Next is understanding a number. We understand a number when we write any particular number in the place value chart. Example लेते हैं. Take a number as 12,34,567. This is a 7-digit number. To understand the number, we draw a place value chart. The number as follow. सबसे पहले नंबर हमारा क्या है? 12,34,567. तो हम इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. इट्स अ 7-digit नंबर. वंस की प्लेस पे आ जाएगा 7, टेंस की प्लेस पे 6, 100 की प्लेस पे 5, देन 1000 की प्लेस पे 4, 10,000 पे 3, lakh की पोजीशन पे 2 एंड 10 lakh की पोजीशन पे 1. So we will read the number as 12,34,567. एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 12 lakh. 12 लिखा, उसके बाद जितनी भी डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे. 1, 2, 3, 4, 5. So we will write 5 zeros after 12 plus 34,000. 34 और उसके बाद 30, then 500, then 60, then 7. वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 12,34,567. एक और एग्जांपल लेते हैं. वी गेट अनदर नंबर विच इज अ 8-digit नंबर. नंबर इज 1 crore 23,45,678. सबसे पहले क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे. सो विल राइट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Now we can see the number. वंस की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 8, टेंस की प्लेस पे 7, 100 की प्लेस पे 6, 1000 पे 5, 10,000 पे 4, lakh पे 3, 10 lakh पे 2 एंड करोड़ की पोजीशन पे आएगा 1 lakh. एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 1, देन कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 के बाद 7 डिजिट है. सो विल पुट 7 0. देन 23 lakh. 23, then 1, 2, 3, 4, 5. We will put 5 0 after 23.
then 45,600 plus 70 plus 8. वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 1,23,45,678. Got it? One more example. Represent 12,345,678. हमें नंबर दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है. इट इज़ अ 8 डिजिट नंबर. इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द प्लेस वैल्यू चार्ट लुक्स लाइक फॉलो. इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे हम? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. सो आप देखिए, वंस की प्लेस पे आ जाएगा 8, टेंस की प्लेस पे 7, देन 6, देन 5, देन 4, then 3, then 2, then 1. So we'll read number as 12,345,678. एक्सपेंड करेंगे 12, उसके कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा देंगे, कोमा 3 डिजिट के बाद नेक्स्ट 3 डिजिट, देन 345,000. So we'll write 345,000, then 600 plus 70 plus 8. इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे. वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 12,345,678. Thus we can understand any number by placing the number in the place value chart is either in international system or Indian system of numeration. The number can be written in figure and express one words according to the position of digit in the place value chart. उनकी place value chart के according, उसको Indian system हो चाहे international system हो, उसको उसके अनुसार हम read करेंगे. Next is successor and predecessor of number. First is successor. Successor means क्या होता है? उसके बाद आने वाला. उसके बाद क्या आएगा? वो क्या होता है? Successor. To get a successor to any number, add 1 to it. किसी भी नंबर का अगर हमें सक्सेसर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? उसमें 1 ऐड कर देंगे. लाइक अगर 12 है तो 1 ऐड करेंगे, 13 हो जाएगा. 24 है तो 1 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा. सक्सेसर ऑफ एनी नंबर, नंबर प्लस 1. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 1, फाइंड आउट द सक्सेसर ऑफ 2,45,31,786. सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे. तो हम इसमें नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,45,31,787. सो 2,45,31,787 is the successor of 2,45,31,786. Now next is predecessor. Pre means पहले, predecessor means उस नंबर से पहले आने वाला नंबर. To get the predecessor of any number, subtract 1 from it. The predecessor of any number is number minus 1. नंबर में से अगर हम 1 subtract करेंगे तो क्या आ जाएगा उस नंबर का predecessor. एग्जाम्पल लेते हैं. Find out the predecessor of 7,65,12,348. predecessor find out करने के लिए क्या करेंगे? 1 subtract करेंगे. तो हमने यहाँ 1 subtract किया तो क्या आ गया? 7,65,12,347. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेडिसेसर किसका? 7,65,12,348 का. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग नंबर्स. किस तरह से नंबर को कंपेयर किया जाता है, कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, वो समझेंगे. When the number of digit are different, the number with the more digit is always greater. जिस भी नंबर में ज़्यादा डिजिट होगी वो क्या होगा? ग्रेटर होगा. यहाँ पे हमें कंपेयर करना है 78,90,564 एंड 6,25,37,984. एज वी कैन से फर्स्ट जो नंबर है दिस वन, इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7. इट इज़ अ 7 डिजिट नंबर. एंड नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है? 8 डिजिट नंबर है. तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि इस नंबर में जो है वो डिजिट ज़्यादा है, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन. सिंपल. नेक्स्ट, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट आर सेम, कंपेयर ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, स्टॉप व्हेन द डिजिट आर डिफरेंट.
अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है. फर्स्ट नंबर इज 2,46,80,975 and next number is 2,46,81,476. Now as we can see दोनों नंबर्स में जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है. तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट लेफ्ट साइड से दोनों में क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम है. मूव टू नेक्स्ट नंबर, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अगेन सेम. देन 6 and 6 अगेन सेम. देन यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, अभी तक सेम चल रहा है दोनों नंबर में. नेक्स्ट इस नंबर में यहाँ पे क्या है, 0 और यहाँ पे 1 है. तो वी नो 1 इज ग्रेटर देन 0. तो क्या हो जाएगा, 2,46,81,476 is greater than 2,46,80,975. So the number 2,46,81,476 is greater than 2,46,80,975. ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे. इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर है. नेक्स्ट इज फॉर्मिंग नंबर्स. Greatest and smallest number. You can write the greatest and smallest number by arranging the digit. Greatest number बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, arrange the digit from greatest to smallest. बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे बड़े से, एंड जो छोटा है उस पर मूव करना है. स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, arrange the digit from smallest to greatest. सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है एंड मूव टू द ग्रेटेस्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर्म अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद अ डिजिट 9, 5, 7, 4, 6, 2, 0 एंड 8. हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये डिजिट्स गिवन है. इसका यूज करके हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर. फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे नंबर को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे और छोटे पे मूव करेंगे. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 9. फर्स्ट वी विल राइट 9, then 8, then 7, then 6, then 5, then 4, then 2 and 0. Now हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे स्मॉल टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े नंबर पे. एज वी कैन सी यहाँ पे क्या है 0, बट अ नंबर कैन नॉट बी स्टार्ट with 0. 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता. अरेंज द डिजिट इन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. Here 0 is the smallest digit. Number starting with a 0 has no meaning. अगर कोई भी नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका 0 का कोई मीनिंग नहीं है. राइट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट. तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वहां से स्टार्ट करेंगे. प्लेस 0 आफ्टर द स्मॉलेस्ट डिजिट. अरेंज द नेक्स्ट डिजिट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. सबसे छोटा 0 को छोड़ के सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज 2. So we'll start from 2, then we'll put 0. अब 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, 4, then 5, then 6, then 7, then 8 and then 9. तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम इस तरीके से अरेंज करेंगे. 0 एट द बिगिनिंग हैज नो मीनिंग. अगर 0 स्टार्टिंग में है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. Begin the number with the smallest digit and put 0 in the second place. Keep arrange the smallest to greatest digit. इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. असेंडिंग ऑर्डर, असेंड मीन्स बढ़ना, बढ़ते क्रम में. अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड मूव टू द ग्रेटेस्ट, बढ़ते हुए क्रम में. डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा. डिसेंड मीन्स छोटा. एग्जाम्पल दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है एंड मूव टू द ग्रेटेस्ट नंबर. ऑल द नंबर आर 8 डिजिट नंबर. स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट. एज वी कैन सी सारे नंबर जो हैं वो कितने, 8 डिजिट नंबर. तो हम लेफ्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे. ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 से,
ये 5 से, ये 1 से एंड ये 7 से। तो देख रहे हैं ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये सबसे छोटा नंबर है। सो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला 1,90,72,478 इज अ 1 इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, सो इट इज द स्मॉलेस्ट। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, दिस वन, हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। देन नेक्स्ट एज वी कैन सी दिस नंबर स्टार्टिंग विथ 2, एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या है 2, तो ये नंबर किस पे आ जाएगा, सेकंड प्लेस पे। देन ये आ जाएगा थर्ड पे एंड ये फोर्थ पे। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट वी विल राइट दिस नंबर, देन दिस वन, थर्ड पे ये आ जाएगा एंड फोर्थ पे। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज कर लेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऑर्डर में। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम में। सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से स्मॉलेस्ट पे मूव करेंगे। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कैसे अरेंज हो जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ गया किस तरीके से नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। Sometimes we do not need to know the exact numerical value. A number close to the actual numerical value serves the purpose. The approximate value is enough to give an idea about the actual value. About or around indicate close by value. Example लेते हैं, actual distance from Delhi to Chandigarh is 275 km. But to get an idea, we generally say it is approximately 300 km. The approximation is called rounding off. This is for the convenience to understand better. Number can be rounded off to nearest 10, 100, 1000 and so on. First is rounding off to nearest 10. Nearest 10 पे कैसे करेंगे हम round off? To round off the number to nearest 10, we have to first find out between which two tens the number lie. Look at the digit at the extreme right. If the number is less than 5, it is rounding off to the previous 10. And if the number is equal to or greater than 5, then it is round off to the next 10. Example लेते हैं, let's take number 17. यहाँ पे क्या है, number 17. हम देखेंगे नंबर लाइन में ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 10 to 20. 10 से स्टार्ट किया 20 तक। देखेंगे किन दो टेंस के बीच में नंबर आता है, 10 और 20 के बीच में, बट इट इज़ किसके क्लोज है, 20 के क्लोज। तो हम क्या करेंगे, इसको 17 को राउंड ऑफ कर देंगे 20 में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, फाइंड बिटवीन विच टू मल्टीपल ऑफ 10 द नंबर लाई। किन टू मल्टीपल्स के बीच में, 10 और 20 के बीच में। नंबर 17 लाइज बिटवीन 10 एंड 20. फाइंड आउट दैट द नंबर इज क्लोज टू विच मल्टीपल ऑफ 10. किसके क्लोज है, 20 के। Number 17 is nearer to 20. So the number 17 is round off to 20. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, let us take a number 73. 73 को हमें राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें देखना है कौन से दो 10 के मल्टीपल के बीच में नंबर है। टू राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, फाइंड बिटवीन विच टू मल्टीपल ऑफ 10 द नंबर लाइज। नंबर इज 73, सो वी नो किसके बीच में आएगा, 70 एंड 80 के बीच में। द नंबर लाइज बिटवीन 70 एंड 80. फाइंड आउट दैट द नंबर इज क्लोज टू विच मल्टीपल ऑफ 10. किसके क्लोज है, ऑब्वियसली 70 के। द नंबर 73 इज क्लोजर टू नंबर 70, सो द नंबर 73 इज राउंड ऑफ टू 70. नंबर लाइन में देख सकते हैं 70 और 80 के बीच में नंबर लिखे हैं, तो किसके क्लोज है, 70 के क्लोज है। तो हम क्या करेंगे, 73 को राउंड ऑफ करेंगे, क्या लिखेंगे, 70. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. अब हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे. टू राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द बिटवीन विच 200 द नंबर लाइज. लुक एट द टू डिजिट
at the extreme right, if the number formed by the 2 digit is less than 50, it is round off to the previous 100. And if the number formed by the 2 digit is equal to or greater than 50, then it is rounding off to the next 100. Example लेते हैं हम यहाँ पे. The numbers 6254 lies between 6200 and 6300. किसके बीच में है? किस 200 के बीच में है? 6200 and 6300. The number formed by the extreme right 2 digit. Extreme right पे कौन सी 2 digit है? 5 and 4, that is 54. 2 digit 54 is greater than 50. Therefore क्या है? अगर 50 से greater है तो क्या हो जाएगा? Next 100 पे. Therefore the number is rounded off to the next 100, that is 6300. So the number 6254 is rounding off to 6300. Next, the number 7521 lies between किसके बीच में है? 7500 and 7600. इन दो नंबर के बीच में है. अब राइट हैंड साइड की दो डिजिट देखेंगे, दैट इज 2121, दैट इज लेस देन 50. तो क्या हो जाएगा? अगर 50 या 50 से कम है, सो द नंबर इज राउंड ऑफ टू द प्रीवियस 100. प्रीवियस 100 क्या हो जाएगा? 7500. सो द नंबर 7521 इज राउंड ऑफ टू 7500. द नंबर 6750 लाइज बिटवीन 6700 एंड 6800. इन दो 100 के बीच में है. राइट हैंड साइड की 2 डिजिट क्या है? 50. अगर डिजिट 50 या उससे ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट 100 पे मूव करते हैं. नंबर फॉर्म बाय 2 डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज 50. तो हम क्या करेंगे? सो द नंबर राउंडिंग ऑफ टू द नेक्स्ट 100, दैट इज 6800. सो द नंबर 6750 इज राउंड ऑफ टू 6800. नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000. The method is similar to rounding of the nearest 10 and 100. जिस तरीके से हम nearest 10, nearest 100 राउंड ऑफ करते थे, उसी तरीके से हमें करना है nearest 1000. Here you have to look at the number formed by the extreme 3 digit in the right. First, if the number is less than 500, it is round off to the previous 1000. If the number is equal to or greater than 500, it is round off to next 1000. Example लेते हैं. The number 9470 lies between which 2000? 9000 and 10000. Number formed by the 3 digit at the extreme right. Extreme right की 3 digit क्या है? 470. As we know, 470 is less than 500. So the number round off to previous 1000. पहले वाले 1000 पे, that is 9000. Therefore, the number 9470 is round off to 9000. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. The number 7620 lies between 7000 and 8000. Now, extreme right की 3 digit देखेंगे, that is 620. As we know, 620 is greater than 500. 500 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 1000 पे मूव करेंगे. सो द नंबर राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट 1000, दैट इज 8000. देयरफॉर द नंबर 7620 इज राउंड ऑफ टू 8000. नेक्स्ट, द नंबर 4500 लाइज बिटवीन 4000 एंड 5000. एक्सट्रीम राइट की 3 डिजिट देखेंगे, वो क्या है? 500. तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 1000 पे. सो द नंबर राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट 1000, दैट इज 5000. नाउ फैक्ट्स. डेट कैन नॉट बी राउंड ऑफ एंड टाइम कैन नॉट बी राउंड ऑफ. डेट और टाइम को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते. नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. We have studied earlier that the place value of a digit is decided by its position in the number. The face value is the value of digit by itself. Place value is the product, the place and face value. किसी भी नंबर की place value क्या होती है?
किस पोजीशन पे वो डिजिट है, एंड फेस वैल्यू क्या होता है, नंबर इटसेल्फ. मैथ्स फैक्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस ऑफ द डिजिट इन द नंबर. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक अ नंबर 12,34,567. We know that the face value is the value of the digit itself. Face value क्या होती है, किसी भी नंबर की face value होगी digit itself. So the face value of 1 की 1 होगी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6 and 7 की 7. Value of 2 is 2, value of 3 is 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6 and 7 की 7. Understand? Face value of any digit does not depend on the position in the number. Face value है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती कि किस पोजीशन पे नंबर है, whether expressed in the Indian और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. कोई भी सिस्टम हो जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है, नंबर इटसेल्फ. बट प्लेस वैल्यू क्या होती है, बट द प्लेस वैल्यू इज डिफरेंट. टू अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू वी हैव टू अरेंज द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना पड़ेगा बोथ इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लेते हैं. हमें नंबर गिवन है दैट इज 12,34,567. First what we will do, we will arrange them in place value chart. हमने इसको अरेंज किया. वंस की पोजीशन पे 7, then 6, then 5, then 4, then 3, then 2 and then 1. The number is 12,34,567. इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे अरेंज करेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 and million. So our number is 1,234,567. As we know, place value क्या होती है, face value multiply by place value of a digit. अब इंडियन सिस्टम में place value लिखेंगे 1 into, हम क्या करेंगे, देखिए 1 के बाद कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4 5 6. सो विल पुट 6 0. 2 की क्या हो जाएगी 2, उसके बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, विल पुट 5 0. देन 3 के बाद है 1 2 3 4 4 डिजिट 4 0. 4 के बाद 3 0 4000 हो जाएगा, 500 देन 60 एंड देन 7. इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, 1 के बाद कितनी है 1 2 3 4 5 6. अगेन 2 के बाद कितने हैं डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. तो हम क्या लगाएंगे 5 0. 2 के बाद 3 के बाद 4 0, 4 के बाद 3, 5 के बाद 2, 6 के बाद 1 एंड देन 7. तो हमने क्या नोटिस किया, वी नोटिस दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट remains same regardless to the system of numeration, whether it is Indian or international system. जो place value है digit की वो same रहेगी. Of course, when we write in word, expression is different. अगर हम words में लिखते हैं तो हमने क्या लिखा 12,34,567 और international system में हो जाएगा 1,234,567. And in figure the position of the commas are different. Now एग्जाम्पल लेते हैं. इन फिगर ये हमें किस में गिवन है, इंडियन सिस्टम में. इंडियन सिस्टम में क्या है, देखिए 3 के बाद कॉमा देन 2 देन 2. तो हम कैसे रीड करेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख. तो ये नंबर क्या हो गया 10 लाख. नाउ इंटरनल सिस्टम में रीड करेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 and million. So this number is 1 million. So in the Indian system में क्या हो जाएगा 10 lakh and international system में हो जाएगा 1 million. तो इस तरीके से हम 7, 8 डिजिट नंबर जो भी बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनको कैसे लिखना है और कैसे रीड करना है. So practice these questions because the more you practice, the more you will learn.